میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے۔ ٹیم، جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ، جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا،
اس سے پہले हम इन सबसे आगे थे 90 की दिहाई तक। तो इन्होंने अगर कुछ करना होता तो कर चुके होते। तो इनको जब जिन्होंने भी लेके आया और हैंडलर्स ने बैठाया हमारे ऊपर, मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने माइशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि जो माइशत छोड़ के गए थे वो तो पाकिस्तान को दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में। तो अब इन्होंने कैसे ठीक करनी थी? जो एक मुल्क के माइशत को तबाह करें वो ठीक तो नहीं कर सकते। जो मुल्क के इदारे तबाह करें, दुनिया की तारीख में वो जो इदारे तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। तो मैं तो तब से कहता जा रहा था कि हमने इतनी मुश्किलों से 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 17 साल के बाद बेहतरीन चल रही थी। जो हमारी दौलत में मुल्क के इजाफा हो रहा था, ये तो लिखा हुआ है, ये किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लें कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की माइशत ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ी बात, और आज फैसलाबाद में लोग देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे असल में मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता है और रोजगार भी मिलता है, वो तो शायद 50 साल में सबसे तेजी से 26% पे बढ़ रही थी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज गिर के सफर पे पहुंच गई है। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था और इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, तो हमें तो पता था क्या होना है। जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, हम उनको भी कहते रहे ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हां गलती होगी, हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए यह मार्च है। कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, जिधर हर जो माइशत का हर शोबा है वो नीचे चला गया, टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई है, बैरून मुल्क पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते थे, और खारियां वो शहर है जिधर सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते थे, जो रेमिटेंस जिस पे पाकिस्तान चल रहा था और हमारी दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई है। नीचे जानी शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम पैसा किधर से लेके आएंगे कर्जों की किस्तें वापस करने पे। देखें, जब एक मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वो अपने कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, क्योंकि कर्जे तो वहीं के वहीं हैं, सूद उनके ऊपर लग रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने आके 3 महीने में वो कर्जा लिया है जो हमने 9 महीने में लिया था। उस 3 महीने में उससे ज्यादा कर्जा लिया जो 9 महीने में हमने लिया था। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है। तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं ये कोई आज माइशत का एक्सपर्ट हो, जो सियासत का एक्सपर्ट हो, जो वैसे कोई दानिशवर हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुझे आदमी बता दे पाकिस्तान में जो आज यह समझता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे एक आदमी बता दे। और मसला फंसा किधर हुआ है? मसला फंसा हुआ है लंदन में। लंदन में क्या मसला फंसा हुआ है कि जो लंदन में मफरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर जो इनके मुंशी और ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है,
इसने 164 का बयान दिया हुआ है अदालत में जाके कि मैं नवाज शरीफ का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाता था। वो काजी फैमिली जिधर लंदन में बैठी थी इल्फर्ड में, उनके बैंक अकाउंट्स दिखाए हुए हैं इसने कि किन बैंकों में पैसा भेजता था, चोरी का पैसा। ये आज से 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की। 25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे एक मफरूर और इसके साथ वो लोग जो सारे कोई ना कोई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। इसहाक डार के बेटे बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा वो सलमान शहबाज बाहर भागा हुआ है, उसका दामाद बाहर भागा हुआ है, और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। क्योंकि इसने गलती क्या की, मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसने बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हर्जाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है, 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। तो ये बैठ के, जो कि अब लंदन के अंदर उसने डेली मेल में बाकायदा बताया कि इन्होंने किस किस तरह की करप्शन किया है। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखे, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं, मेरिट पर नहीं लोग आते हैं, जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया, और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे, और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे, वो लोग बैठाते हैं। अब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है लंदन में बैठ के, और ये फैसला कर रहा है कि क्योंकि इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बाहर में जाए पाकिस्तान, मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है, जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो। मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल, क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डाल। इनके लिए अजाब हो जाता है, शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करनी है, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठा है, सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया को बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है, और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है, और उनमें शऊर आ चुका है, और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए। 7 महीने से
बार बार अवाम आपको बता रही है, सारी कौम को, कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाय इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है, समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है। तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, और मैं जब इंशाअल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम कह बैठी और ये कहेगी जाके इंशाअल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। और मैं दो और बातें करना चाहता हूं। जब से ये आए हैं, पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। इन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया। ये 7 महीने से बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो। मुझे एक चीज बता दें। मैंने बड़ा रोका हुआ था, बैरूनी दौरे मैंने बड़े देख के करता था। मैं किसी बैरूनी दौरे पे नहीं जाता था जब तक मेरे मुल्क को फायदा ना हो। मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 3.5 साल में 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि उन दौरों से मेरे मुल्क को फायदा नहीं है, मैं नहीं गया। नवाज शरीफ 24 दफा निजी दौरे किए इसने प्राइम मिनिस्टर होते हुए बरतानिया के। जरदारी 50 दफा निजी प्राइवेट दौरे किए इसने दुबई के, मैंने तो कोई नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 7 महीने में इनकी कैबिनेट, इनके पार्लियामेंटेरियंस ने 3 गुना ज्यादा दौरे किए जो हमने 3.5 साल में नहीं किया। पैसा इन्होंने खर्च किया, महंगे महंगे होटलों में ये ठहरे। ये अभी चाइना गया तो 777 बोइंग वो लेके चला गया, जिस तरह पाकिस्तान में तेल की नहरें बह रही हैं। क्या इन्होंने अचीव किया? कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ इससे, बताएं कि कोई हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुई। बल्कि मैं आज आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का वकार दुनिया में नीचे गया। हमारे दौर में हमने इस्लामोफोबिया, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम है, हमने उठाई थी, पाकिस्तान ने उठाई थी। यूनाइटेड नेशंस में, OIC के अंदर दुनिया एक्नॉलेज करती थी, मुसलमान दुनिया के, पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमने, मेरा सारा जो हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे, वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो। मैं कोई किसी के सामने कोई झुक के और पैर पकड़ के मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता, मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमेरिका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर, वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। हमें वो बताया, जिस तरह माजी में वॉर ऑन टेरर में मैं किसी की गुलामी कभी नहीं कबूल कर सकता, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी को अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में आइसोलेट किया, तो तुमने जूते पॉलिश करके क्या किया अब तक? बताएं, आपने लोगों के जूते पॉलिश किए हैं, सबके सामने गिर जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। कितने पैसे आ गए हैं, कितना फायदा हो गया पाकिस्तान को। और फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा मुझे यह बताएं कि आज जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं इन सब से आज पूछता हूं, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है,
किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले, इनके लोगों से, कि किसी के पास कोई रास्ता है कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है? हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, 88% बिजनेसमैन ने कहा है कि हमें पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। यानी बिजनेस कम्युनिटी का, उनका कोई उनके एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। यही फैसलाबाद था जब हम आए थे 2018 में। फैसलाबाद के आज अगर लोग देख रहे हो तो फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अपनी मशीनें बेच रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे ये आज से 7-8 महीने पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछे, मुझे जो टेक्सटाइल के कारखाने के जो मालिक थे, मुझे कहते हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्सटाइल की सेल्स हुई, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए थे। और फिर से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26% पे बढ़ रही थी। और आज वो जरा फैसलाबाद से पूछे कि लोगों के क्या हालात हैं, आज मजदूरों से पूछेंगे रोजगार कितना मिल रहा है, आज लोगों से पूछ, तो कौन सी क़यामत आ गई 7 महीने में कि सारा कुछ नीचे चला गया? महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तेल तो आज सस्ता है, हमारे दौर में तो महंगाई तेल की वजह से थी, बैरून मुल्क में तेल की कीमत ऊपर गई। तो आज महंगाई की क्या वजह है? हमारे दौर से तो ज्यादा सस्ता है आज तेल। हर चीज जो महंगी हुई है, कौन है इसका जिम्मेदार? और सवाल मेरा यह है कि अब ये क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। इस मुल्क के अंदर जो कि रोजगार देने के लिए जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, वो भी लोग पीछे हट गए हैं। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस, एतमाद ही नहीं है, इन्वेस्ट क्यों करें? और क्यों इन्वेस्ट करें? किसी को पता ही नहीं हुकूमत कितनी देर चलेगी। और वो पूछें कि जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पैसा भेजते थे, वो कम होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है। तो सारों से मैं पूछता हूं, इसका क्या हल है? इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आज इसलिए ये मार्च वालों को कह रहा हूं कि ये जो जिहाद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सियासी तौर पर इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और तब ये मुल्क की जो माशियत है वो उठ सकती है। और जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दांव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को, मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए, इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आखिर में अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूं कि सारी कौम आज आपकी तरफ देख रही है। मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। अभी सारी कौम ने यही देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, शहबाज शरीफ। अदालत ने कहा पेश हो, 8 दिसंबर को कहा कि आगे अदालत में पेश हो, इसलिए वो मुल्क आगे निकल जाते हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां इसी शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी। वो जो FIA का केस था, मकसूद चपरासी वाला, 16 अरब का, इसको सजा होने वाली थी, वहां से भी बच गया। सारे गवाह भी मारे गए, 4 गवाह मारे गए, 1 इन्वेस्टिगेटर मारा गया, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ का, कि देखिए अरशद शरीफ लोगों के दिलों में बैठ गया जाके, क्योंकि सारी कौम को पता है कि उसको पूरी तरह उसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की गई। सारी कौम ने देखा कि वो अपने मौके पे खड़ा रहा। वो बार बार सच, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसका काम है राय हक पे खड़ा होना, वो अपने मौके पे खड़ा रहा, और बार बार धमकियां मिलती गईं। सारी सहाफी बरादरी को पता है कि उसकी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो खड़ा रहा। आखिर में मुल्क से बाहर गया,
اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر، ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا، وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا، آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا، ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا، اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا، اور اس کے بعد جو ویڈیو نکالی اور اس کی بیوی کو جو تہجد گزار، یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے اتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے، تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا. تو یہ انتہا ہو جائے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں. پرائم منسٹر پاکستان، ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. میرا حق ہے کہ میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں دوں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو، اور وہ بھی آپ کے نیچے، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے 3 نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی. یہ جو بیچارے آج کل بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ٹیلی فون کھینچ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں اس سے کہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے. جب بے روزگاری بڑھتی جائے گی، مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں، اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت، یہ تو دنیا میں کہیں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں، آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.